Hello everyone, welcome back to Sumit's Academic Zone. Today we're gonna discuss about IBO 001 term and examination. If you are enrolled in Masters of Commerce program or PGDIBO, means Postgraduate Diploma in International Business Operations, then you have to take an examination for IBO 001. Okay, so I'm gonna share how you can write the term and examination for IBO 001 and what are the precautions that you have to take while taking the term and examination for IBO 01. On the screen, you can see this is a recent question of IBO 001 from IGNOU. Either you have enrolled for postgraduate diploma in international business operations or masters of commerce, you have to take this exam. Okay, so this is June 2025 term and examination paper for IBO 001 international business. You can see on the screen. Let's talk about uh, the question patterns, how the questions come in the examination. Okay, so you can see part one of so this is the cover page of IBO 001. Okay, international business. Total time for the examination will be 3 hours. You have to write all the things, all the questions in 3 hours only, and the maximum marks is 100. Okay, now let's come to the question. Read the note first. Attempt both parts as per instructions. Okay, so you need not to answer all the questions. First you have to read the instruction of all the parts of the question. Okay, you can see in the part 1, comment on any 4 of the following statements. Okay, so there are 1 2 3 4 5 6, total 6 questions in part 1. Okay, 6 statements in part 1. So as per instruction, we will be attempting only 4 statements. Okay, and each of the statement carry 5 marks. Remember, then this is each statement carries only 5 marks, so you have to write accordingly. Don't waste your time or don't override the question. Okay, I'll explain how much you have to write for 5 marks question, so that you won't invest much of your time in small questions. Okay, now let's go to second part of the question, part B. Okay, attempt any 4 of the following questions. Remember here, a part of this 4 statement, this 4 statement will carry only 20 marks. So remaining 80% of mark is being carried by part B. Okay, so what is the instruction for part B? Attempt any 4 of the following questions. Okay, so how many questions are in the part B? Let's see. 1 2 3 4 5 6 7. So total 7 questions are in part B. Okay, and as per the instruction, we are going to attempt only 4 questions. Each question here carries 20 marks. Okay, so this is very crucial part of the question in term and examination. This is 80 mark. This 4 question will carry 80 marks. So you have to write all these questions. Okay, 4, you can choose 4 questions from the 7 questions available in the part B. Okay, so always write those questions which you are very confident in. Okay, choose those questions first which you have studied and you are confident about writing it. Okay, so these are the questions. You can choose any 4 of them. So what kind of question is being asked in the examination, you can see in this video. You can pause the video
and you can check out it. Okay, or if you want to download it from the browser, you can go to the browser and type IBO01 IGNOU. You will get this particular question. The recent question is being uploaded by the university. You can download it from there. Okay, so these are the questions. Now the question is given in both of the languages. If you are Hindi student, the Hindi translation of the question is also given at the bottom. Okay, in the same way, इसके लिए भी अगर आप M.Com कर रहे हैं, अगर कॉमर्स लेकर M.Com कर रहे हैं, तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो IBO01 अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिवेश के लिए ये ऐसा ही होगा। 3 घंटे का क्वेश्चन, अधिकतम जो मार्क्स है ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, जो जिसके लिए सारा आपको क्वेश्चन ही लिखना होगा, इसके लिए कोई डेजर्टेशन या ऐसा यस नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही लिखना है। ठीक है, IBO001 इसमें इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको जो पहला खंड क है उसके अंदर 4 क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल 6 स्टेटमेंट्स यानी कि क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको 4 ही क्वेश्चंस लिखने हैं और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स से होंगे। ठीक है, और पार्ट बी यानी कि खंड ख में आप जाएंगे तो वहां भी आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 ही लिखने हैं। तो आपका जो फोकस होगा वो 4 क्वेश्चंस लिखने में होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि मुझे ये ज्यादा आता है या मैं इसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंट हूं, तो उसको आप पहले लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो टिप्स है कि टर्म एंड एग्जामिनेशन आप जब लिखने जाते हैं तो आप क्या इंस्ट्रक्शन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक नोट बनाया है। ठीक है, जिसमें मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है 5 मार्क्स, उसके लिए क्या करना है। पहले पार्ट में आपको जो है राइट 1 to 1.5 पेजेस। तो 5 मार्क्स के लिए कभी भी आप ज्यादा मत लिखिए। आप ज्यादा लिख के होगा क्या, ठीक है, आप अगर ओवर टाइम अगर टाइम ज्यादा लगा दोगे दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इस याद रखिए कि जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना है। उससे ज्यादा आप अगर लिख दोगे तो 5 के अलावा आपको 10 मार्क्स उसमें नहीं मिलने वाले। तो ये ऑलवेज रिमेंबर दिस, जितना जरूरत है क्वेश्चन के लिए उतना ही लिखिए। ठीक है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप ट्राई जरूर कीजिए 2 पेजेस लिखने के लिए। अगर 2 पेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 2 पेज नहीं हो पा रहा है, तो आप एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 पेज 5 मार्क्स के लिए लिखना है। ठीक है, और शुड बी अराउंड 150 to 250 वर्ड्स और 300 वर्ड, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और उसमें मतलब आप कैसे लिखेंगे 5 मार्क का क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, उसमें पहले आपको एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे आपको पॉइंट्स में लिखना है। पहले पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर पॉइंट्स में उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है। दैट्स इट, 5 मार्क के लिए आपका ये इनफ हो जाएगा। और ठीक है, और उसके बाद 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20 मार्क के क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको 6 से 8 पेज लिखना है, क्योंकि ये ही क्रूशियल पार्ट है टर्म एंड एग्जामिनेशन IBO के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 80 मार्क भी लिख देते हो, 80 मार्क्स अगर अटेम्प्ट कर देते हो अच्छे से, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अच्छे मार्क्स आपको चाहिए तो आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया है टिप्स, उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, 6 to 8 पेजेस लिखना है। ठीक है, और 20 मार्क क्वेश्चन में अराउंड 800 to 1200 वर्ड्स होना चाहिए। और जैसे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप फॉर्मेट करोगे तो किस
फॉर्मेट में आप लिखोगे, मैं बताता हूं। तो पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन जो होगा इसका एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ही। मीनिंग डेफिनेशन, अगर किसी पर्टिकुलर ऑथर का आपको अगर याद है, ठीक है, तो उस ऑथर को रेफर करके आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मेन एक्सप्लेनेशन विथ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी पार्ट लिखोगे कि क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको उसको हेडिंग के साथ लिखना है, ठीक है, और सब हेडिंग के साथ लिखना है। अगर उस क्वेश्चन में कोई डायग्राम है, एग्जांपल्स है या चार्ट्स है, आपको बनाना है, उसके बाद आप वो करना। उसके बाद आपको कंक्लूजन राइट करना है, कंक्लूजन लिख देना है। तो ये टोटल आपका 6 to 8 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। और आप इतना बस याद रखो, अगर टर्म एंड एग्जामिनेशन के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप भूल रहे हो प्रोसेस, तो आप इतना याद रखो कि 5 मार्क के लिए आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, मैक्सिमम 2 पेज लिखना है, और 20 मार्क्स के लिए 6 to 8 पेज लिखना है। अगर आप सब कुछ भूल जा रहे हो और आपको कुछ नहीं पता है, तो आप कोशिश करना कि अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट आप लिख करके ही आओ। क्योंकि अगर आप लिख करके आओगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट, तो इतना है कि आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है और आपने इसको लिखा है, तो वो एटलीस्ट 10 मार्क्स आपको देंगे, ठीक है। सो आप ये समझ के आओगे, आपको जो भी क्वेश्चन है उसको आपको कॉन्फिडेंटली लिख के आना है, ठीक है। और अगर आप लिख के आओगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। सो आई थिंक ऑलरेडी आई हैव डिस्क्राइब सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग IBO 01, ठीक है। सो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया है, आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चन पर्सनली। एंड हाँ, अगर आप एमकॉम के अंदर एमकॉम के अंदर एक डेजर्टेशन होता है, उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, विल हेल्प यू फॉर दैट एज वेल। दैट इज चार्जेबल हाउएवर, ठीक है। और apart of this, if you have any confusion or you want counseling on your dissertation or any of IGNOU's issue, you can contact me on my WhatsApp number. Thank you very much for watching. Have a wonderful day.